हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। हम लोग जो है अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, दैट इज हीट, राइट। दिस इज द लेक्चर 2 एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी about various types of thermometers and also the various types of scales of temperature। ठीक है, एक तो हमने लास्ट टाइम सेल्सियस स्टडी किया था, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट जो स्केल्स होते हैं, राइट, उनके बीच में रिलेशन, देन वील बी डूइंग सम क्वेश्चंस, राइट, एंड देन वील बी टॉकिंग अबाउट द एनर्जी, यू कैन से द यूनिट्स ऑफ राइट हीट एनर्जी, राइट। तो बेसिकली दैट इज अ गुड एग्जाम्पल, राइट, कि हम लोग जो करने वाले हैं दैट विल बी हेल्पिंग यू इन achieving the school examination, right, or you can say achieve good marks in the school examination or in the Olympiads level. So basically we are trying to provide you the quality education so that you can get the good marks, or you can say the rank according to you in your school examination and the Olympiads, right. Basically we are trying to both, right, we are doing very much preparations for both, right, and that you all know that's what we do here. So we basically do all such types of things, right, and we aim for the school examination as well as the Olympiads level. So that is very much good for anybody, right, for anybody, that is very much good. Now as you can see, you can definitely connect with us on the Telegram channel. You can have the DPPs and study material over there, right. So you have to write this code TTB07 over there, write the code over there, join us, get the DPPs and study material, and that would be very much good, right. You will be getting the notifications too, right. So that is good. Now you can see this is the team which is going to help you a lot in achieving the goals you are aiming for, the ranks you are aiming for, or the good marks you are aiming for. We are doing very much hard work for you all. So we do mention some things that you need to do some, right. Okay, you have to practice more, you have to study with us, right, you have to study more and more so that you can get the good marks, right, and definitely do hard work in a smart way. Now let's talk about the things जो कि हमारा ritual है, that we always talk about this, right. So basically what we prepared for you and what you need to do is this. You need to go on this website www.talkingtextbooks.in. If you go on this website, you will be getting two types of packages. Number one is the full package, right, then in that you will be getting the study material, right, you will be getting the recorded and live classes, you will be getting bi-weekly quizzes, you will be getting homework submission, and you will be getting the periodic test paper. So all such things are included in one package, that is the, you can say, full package, right. And this works as a guide to anybody who wants a mentor or who want to aim for something important in their life, and that's why they are going to achieve all such things, right. So basically it would be help you as a guide, right, and we do mentor the students connected with us. So basically that is very much good for you all, right. You can next see the test series, right. So next package is the test series, and over there you will be getting test series में आपको सारे questions मिलेंगे and the live and recorded classes. So you will be getting what? You will be getting the bi-weekly quizzes, you will be getting the periodic test papers, you will be getting the recorded and live classes, right. So basically you will be getting important things like you can get tested yourself, right, and you can have a dream of aiming among the whole India, right. So basically you can achieve that, right. And if you want a discount on any of the package you buy from the talkingtextbooks.in, you can write my code, that is CY Live. If you write this code, you will be getting a 30% discount, right, on any of the package you buy from talkingtextbooks.in, right. So basically this is important, right. And if you have any query regarding how these packages will be benefiting you, or how these packages help you in achieving your goals, achieving your targets, all right, in any examination, you can definitely call us, and the number is 919549. Let me repeat that again, 919549041111. That is the number you have to call us on, and right, and get all your जो भी आपकी you can queries हैं वो सब resolve हो सकती है, right. तो basically just you need to call us and that's it, right. Now let's start the chapter, but before that let's promise. What you need to promise is you will be going to watch the whole lecture, you will be making proper notes, and you will be revising on a daily basis. That is a must, right. 15 minutes a day you need to revise daily, all right. So you will be doing that. Now let's talk about the temperature of the scales, right.
और यू कैन से द स्केल्स ऑफ द टेम्परेचर. सो लास्ट टाइम हमने देखा था दैट देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ. सो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, राइट. मतलब जैसे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होती है ना लेंथ को मेजर करने के लिए, या फिर टाइम को मेजर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, लाइक सेकेंड्स होता है, आवर होता है, मिनट्स होता है, राइट. उसी तरीके से टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, एंड दोज यूनिट्स आर द सेल्सियस और सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट एंड दी कैल्विन. तो यू कैन से कि भाई ये तीनों ही यूनिट्स, और भी बहुत सारी होती है, रीमर होती है, रेनकाइन होता है, सो वो भी होती हैं, बट दीज आर नॉट वेरी मच पॉपुलर. दीज थ्री आर टोटली पॉपुलर, राइट, एंड यू मस्ट नो दीज बेसिक ऑल्सो, राइट. तो बेसिकली ये जो तीन है, ये तीन सबसे बेसिक हैं, एंड आई वॉन्ट यू टू नो, हम हर एक इन तीनों के बारे में स्पेशली हर एक को डिस्कस करेंगे दैट हाउ इट इज़ शोन, राइट. लास्ट क्लास में हमने सेल्सियस का तो स्टडी कर लिया था. सो व्हाट इज़ इट, हमने ये चीज़ स्टडी किया था कि इस स्केल में क्या होता है, 100 डिविजन्स होते हैं. किसके बीच में, अपर स्टैंडर्ड पॉइंट एंड द लोअर स्टैंडर्ड पॉइंट. सो अपर एंड लोअर स्टैंडर्ड पॉइंट के बीच में 100 डिविजन्स होते हैं, राइट. यू कैन सी हियर द लोअर स्टैंडर्ड पॉइंट दैट इज नोन एज द freezing point of water, 0 degree Celsius, right. And the upper standard point is the boiling point of water. That is what that is the boiling temperature, you can say, right. Or so that's why at the temperature at which water starts boiling, so that is 100 degree Celsius. all right. तो इनके बीच में 0 से 100 के बीच में 100 डिविजन्स होते हैं. हर एक डिवीजन 1 डिग्री सेल्सियस को शो करता है, राइट. That's what we have studies, right. हर एक डिवीजन, मतलब इस पूरे स्केल में हर एक डिवीजन, 1 डिवीजन रिप्रेजेंट हाउ मच, ठीक है. आप देखेंगे 1 डिवीजन जो होता है that is equal to 1 degree Celsius, right. And I told you why this is 100, because this cent means 100, this is equals to 100. all right, that's why it is the 100 divisions between the, you can say, 0 degree Celsius, that is the freezing point of water, 100 degree Celsius the boiling point of water, right. इनके बीच में 100 divisions होते हैं. so आप बिल्कुल बोल सकते हो, and 1 division is equal to 1 degree Celsius. all right, so you can definitely say that. अब और भी ज़्यादा अगर sensitive you can say, और भी ज़्यादा हम माने कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसको हम सेंसिटिव बना सके और एक्यूरेट बना सके, कि हमको जो भी टेम्परेचर का रीडिंग मिल रहा है वो और भी अच्छे से एक्यूरेट हो, कि भाई इतना एग्जैक्ट हमें पता चले. सो वी यूज़ मच मोर ग्रेटर वैल्यू वाला यू कैन से दिस टाइप ऑफ स्केल, जिसके अंदर 200 जो होता है डिग्री सेल्सियस तक मेंशन होता है. एंड 200 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, हर एक हाफ यू कैन से 1 डिवीजन इज इक्वल्स टू द हाफ टेम्परेचर, हाफ डिग्री सेल्सियस, यू कैन से, ठीक है. ये तो 1 डिवीजन, ये तो नॉर्मल स्केल के हुआ. फॉर मोर सेंसिटिव के लिए क्या होता है, 1 डिवीजन इज इक्वल्स टू, ठीक है, 1 डिवीजन इज इक्वल्स टू हाफ डिग्री सेल्सियस, ठीक है. तो बहुत ही ज़्यादा अगर आपको एक्यूरेट चाहिए, राइट, बहुत ही ज़्यादा यू कैन से आपको एक्यूरेट वैल्यूज़ चाहिए टेम्परेचर की, सो यू कैन डेफिनेटली राइट 1 डिवीजन इक्वल्स टू हाफ डिग्री सेल्सियस. और राइट, तो बेसिकली दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ़ारेनहाइट स्केल. फ़ारेनहाइट स्केल में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है. हम उसका जो लोअर स्टैंडर्ड लेते हैं, ठीक है, हम जो उसका लोअर स्टैंडर्ड लेते हैं और उसका जो अपर स्टैंडर्ड लेते हैं, वो जनरली यही होता है. लेट मी टॉक अबाउट दैट. ऑलराइट, अब देखो मैं आपको बताती हूँ. देखो इसमें भी क्या हो रहा है, जो लोअर स्टैंडर्ड पॉइंट है वो ऐसा पॉइंट है, ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर वाटर फ्रीज होता है, राइट. वाटर फ्रीज होता है, दैट इज द 0 डिग्री सेल्सियस इन सेंटीग्रेड, बट इट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इन फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है. तो अगेन ये जो 32 डिग्री होता है ना, ये लोअर स्टैंडर्ड पॉइंट होता है, एंड दिस लोअर स्टैंडर्ड पॉइंट इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर.
ऑलराइट, एंड द नेक्स्ट थिंग आई वांट यू टू नो इज दैट जो इसका अपर पॉइंट होता है, यू कैन से द अपर स्टैंडर्ड पॉइंट, एंड दैट इज ऑल्सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जैसा कि सेल्सियस स्केल में था. सो दिस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू हायर स्टैंडर्ड पॉइंट. ठीक है, जो हायर उसका स्टैंडर्ड लेवल होता है ऑन द स्केल. सो बेसिकली क्या किया गया, लोअर से यानी यू कैन से फ्रीजिंग पॉइंट से लेके बॉइलिंग पॉइंट तक के बीच में बहुत सारे नंबर्स आते हैं. अब आप खुद से देखो, जो सबसे मिनिमम है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो सबसे मैक्सिमम है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है. तो बीच में कितने सारे डिविजन होने चाहिए, कितने नंबर्स हैं, 180. राइट, 180 नंबर्स हैं. सो जब हम, और इसके ऊपर डिविजन्स 180 नहीं होता है एक्चुअली. आप देख सकते हैं दिस स्केल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ़ारेनहाइट एंड दैट्स व्हाई द नेम. फ़ारेनहाइट ने इंट्रोड्यूस किया, इसीलिए इसको फ़ारेनहाइट स्केल बोलते हैं. राइट, ऑन दिस स्केल 32 डिग्री फ़ारेनहाइट रिप्रेजेंट्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस आर द सेम. Alright, do remember melting point of ice and freezing point of ice are the same 0 degree Celsius. Alright, देखो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट द स्टीम पॉइंट. स्टीम पॉइंट इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. ऑलराइट, सो बेसिकली वापस से वही काम किया है. वापस से जो लोअर स्टैंडर्ड है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो हमने क्या लिया है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, एंड जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट लिया है वो क्या लिया है, वाटर का यू कैन से बॉइलिंग पॉइंट. ऑलराइट, देखो 0 इज मार्क 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बिलो द आइस पॉइंट. ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 32 है तो 0 और भी नीचे होना चाहिए. राइट, 0 और भी नीचे होना, और भी कम में होना चाहिए. सो ऑलवेज ये जो आइस पॉइंट है और यू कैन से द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इसके नीचे हमेशा 0 एग्जिस्ट करता है, उसको मार्क किया जाता है. राइट, द लेंथ इन बिटवीन द स्टैंडर्ड पॉइंट्स इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स. ईच डिवीजन ऑन द स्केल इज कॉल्ड 1 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो क्या किया जाता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक 180 डिविजन्स होते हैं, और 180 डिविजन्स को जो है बनाया जाता है, एंड 1 डिवीजन रिप्रेजेंट्स ऑलवेज 1 डिग्री फ़ारेनहाइट. ऑलराइट, तो यहाँ पे हम बोलेंगे 1 डिवीजन. ऑलराइट, हम लोग यहाँ बोलेंगे दैट 1 डिवीजन इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट. ऑलराइट, देख सकते हैं दिस स्केल इज वाइडली यूज फॉर मेट्रोलॉजिकल एंड क्लिनिकल पर्पसेस. सो इस तरीके के स्केल्स आपको जनरली जो है क्लिनिकल पर्पसेस के यूज़ होता है, जैसे कि डॉक्टर्स के पास आपको मिल सकते हैं. राइट, तो हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, ऐसे भी बहुत सारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग जनरली इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, अब देखो थर्ड स्केल, एंड दैट इज द केल्विन स्केल. नाउ यू कैन सी हियर, देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखो. 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, वाटर फ्रीज होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है. राइट, तो यू कैन से 0 डिग्री सेल्सियस. राइट, इसी के इक्विवेलेंट फ़ारेनहाइट में कौन होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड इसी के इक्विवेलेंट केल्विन में कौन होता है, 273 डिग्री फ़ारेनहाइट. ऑलराइट, एंड आप देखो जो अपर लिमिट है, दैट इज जिस पे वाटर बॉईल होता है, देखो वो 100 डिग्री सेल्सियस है सेल्सियस स्केल पे. ठीक है, वही इक्विवेलेंट है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 12 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बॉईल होता है वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है वाटर, एंड केल्विन में 373 केल्विन पे होता है बॉयल वाटर. तो मेनली अगर हम इन दोनों को इन तीनों को इक्वेट करते हैं, सो वी ऑलवेज गेट दिस टाइप ऑफ वैल्यू. ठीक है, सेम टेम्परेचर पे शो हो रहा है बट अलग अलग स्केल्स में हो रहा है. ठीक है, सो दैट्स हाउ वी कैन से. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट देयर इज नो नेगेटिव टेम्परेचर इन केल्विन स्केल. 0 केल्विन से नीचे अब तक कोई टेम्परेचर नहीं है. राइट, हमने जो मेजर किया है वो 0 से कभी भी नीचे नहीं गया. सो 0 केल्विन इज द मिनिमम टेम्परेचर यू कैन से एवर एग्जिस्ट. राइट, उसके ऊपर ही हमेशा रहता है. ऑलवेज डू रिमेंबर 0 केल्विन से नीचे कोई एग्जिस्ट नहीं करता. राइट, ये दिस सेल्सियस कैन बिकम नेगेटिव, -273 तक एग्जिस्ट करता है. राइट, एंड जो फ़ारेनहाइट है वो माइनस का 459 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है, उसके नीचे नहीं जाता. राइट, उसके नीचे नहीं जाता, एग्जिस्ट नहीं होता टेम्परेचर. नाउ यू कैन सी हियर द स्केल ऑफ मेजरमेंट फॉर टेम्परेचर इन विच लोवेस्ट टेम्परेचर इज 0 केल्विन. एक ऐसा स्केल जिसका सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर होता है 0 केल्विन, दैट इज नोन एज द केल्विन स्केल. राइट, दैट इज माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस में अगर हम कन्वर्ट करें तो.
राइट। तो बेसिकली 0 केल्विन इज इक्वल्स टू माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस, और राइट इज कॉल्ड द केल्विन स्केल। दिस इज ऑल्सो द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। आई टोल्ड यू जब हम यूनिट्स की बात कर रहे थे दैट टेम्परेचर का यूनिट्स होता है केल्विन, दिस इज द केल्विन वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो ये इसका जो एसआई यूनिट है वो केल्विन होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इस स्केल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेट अस टॉक अबाउट दैट, ऑलराइट। So number one thing you must remember, alright, you must remember is that there cannot be any temperature below 0 Kelvin. 0 Kelvin के नीचे कोई भी टेम्परेचर नहीं होता, राइट। तो बेसिकली टेम्परेचर एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके नीचे। 0 Kelvin इज द मिनिमम लेवल, ठीक है। द टेम्परेचर इज एक्सप्रेस्ड इन के, ठीक है। मैंने आपको बताया था, हमेशा देखेंगे, हमेशा आप ये नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल भी डिग्री का साइन नहीं है। सो whenever you write the temperature in Kelvin there is no degree used, ठीक है। डिग्री सिर्फ सेल्सियस में यूज किया जाता है एंड फ़ारेनहाइट में यूज किया जाता है, ठीक है। केल्विन में यूज नहीं किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, राइज इन टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल्स टू राइज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। सो बेसिकली डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो केल्विन में भी इंक्रीज होगा, और अगर केल्विन में इंक्रीज होगा तो सेल्सियस में भी इंक्रीज होगा। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केल्विन स्केल, ऑलराइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कन्वर्जन। किस तरीके से आप डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू दी, यू कैन से डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर रहे हैं डिग्री फ़ारेनहाइट में, और फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट कर रहे हैं केल्विन में। सो हाउ यू कैन डू दैट फॉर you can I can tell you that हमेशा आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप तीनों ही टेम्परेचर स्केल्स में से किसी में भी चेंज कर सकते हो, राइट। यू कैन ऑलवेज कम, देखो TC क्या है, लेट मी टेल यू भाई कि ये क्या चीज़ डिनोट करते हैं। सो TC क्या है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसी तरह आप देखो जो TF है, ठीक है, ये जो TF आप देख रहे हैं, दिस इज शोइंग यू द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ठीक है। अभी देखो TK, ठीक है, तो दिस इज शोइंग यू द टेम्परेचर इन केल्विन, ऑलराइट। अब आपको क्या करना है, अगर आपको लेट्स से आपको कोई भी टेम्परेचर गिवन है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, आपको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। सो व्हाट फॉर्मूला यू विल बी यूजिंग, यू विल बी यूजिंग दिस मच ओनली, TC एंड TF, तो यही वाला आप यूज करेंगे, ठीक है। इफ यू वांट टू कन्वर्ट लाइक फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है केल्विन में, देन यू विल बी यूजिंग ओनली दिस मच फॉर्मूला, राइट। अगर आपको सेल्सियस से करना है केल्विन में, देन यू विल बी यूजिंग दिस एंड दिस, ऑलराइट, स्किप द मिडल। सो बेसिकली इसी एक फॉर्मूले से यू आर एबल टू कन्वर्ट द डिग्री सेल्सियस, द डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन इनटू वन अनदर, ठीक है, जिसमें भी पूछा गया हो। तो हम कुछ क्वेश्चंस करें, हाँ कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। लेकिन पहले आप इसको नोट करो क्योंकि ये चीज़ आपको पता होनी ज़रूरी है, ऑलराइट। नोट इट आउट, जिसके अंदर आप देख रहे होंगे कि कौन से स्केल के अंदर हम लोग कौन से स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग व्हाट फार्मूला। ऑलराइट, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करें, हाँ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम फटाफट से, एंड दीज आर द क्वेश्चंस, ऑलराइट। सो लेट्स स्टार्ट। आई हैव रिटन द फॉर्मूला ऑन द अपर वन, ठीक है, हमने ऊपर लिख दिया है। नाउ लेट्स डू इट, हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ऑलराइट। सो वी विल बी डूइंग दिस, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं 293 केल्विन को, ठीक है, 293 केल्विन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इन डिग्री सेल्सियस, ऑलराइट। सो बेसिकली हम लोग को इसको कन्वर्ट करना है। नाउ लेट्स डू इट।
फटाफट से कर लेते हैं। देखो फॉर्मूला हमको देखो के एंड सी में करना है, राइट, के एंड सी। सो व्हाट वी विल बी यूजिंग दिस मच फ्रैक्शन एंड दिस मच, right? So I would be writing what? I would be writing Tc by 5 because I don't know the temperature in degree Celsius. That's what I have to calculate. And then I will be writing Tk minus 273 divided by 5. Alright. Now I would be doing that. ठीक है, 5 से 5 में कैंसिल कर देती हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, सिंपल Tc जो है, Tk वाला जो टेम्परेचर है दैट इज नोन, राइट, दैट इज दी नोन। तो आई वुड बी राइटिंग 293 केल्विन माइनस 273। ऑलराइट, सो आई वुड बी राइटिंग 3 में से 3 0, 9 में से 7 2, सो ओनली 20 डिग्री सेल्सियस इज रिमेनिंग। दैट्स व्हाई Tc is equals to this much. Alright, so basically this is the thing. So अब आप देख सकते हैं easily आपको पता चल गया that 293 केल्विन को अगर मैं डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करूंगी, so I would be getting 20 डिग्री सेल्सियस. Alright, now let's do this with the second one. 25 डिग्री सेल्सियस into केल्विन को करते कन्वर्ट, ठीक है, कैसे करेंगे, let's do that. तो अभी वापस से हमें क्योंकि डिग्री सेल्सियस और केल्विन को चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, so we will be using this and this. Alright, again I'm writing Tc divided by 5 is equals to Tk minus का 273 by 5. Alright, अब 5 से 5 cancel. Let's write here Tc का temperature because Tc ये temperature in degree Celsius is given इस time. So we are writing 25 equals to Tk माइनस का 273. अब ये माइनस का 273 है वो यहाँ पर आ जाएगा, राइट हैंड साइड में आ जाएगा और ऐड हो जाएगा. सो जो Tk होगा क्या बचेगा, वो सिंपल बचेगा 273 प्लस का 25. ऑलराइट, सो क्या होगा, 3 and 5 becomes 8, 7 and 2 becomes 9, 298 Kelvin is the final answer and this is the temperature equivalent to 25 degree Celsius. Alright, so that's how we are going to write all the things. अब हम फटाफट से क्या करते हैं, थर्ड वन को नोट करते हैं, ठीक है. थर्ड वन को देखो, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस की बात हो रही है, राइट. तो डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की बात हो रही है, तो कौन से दो फॉर्मूला में यूज़ करना है, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट. ऑलराइट, सो लिख देते हैं हम फॉर्मूला इसका, Tc by 5. लेट मी राइट दैट, ठीक है. इसको हम क्या लिखने वाले हैं, हम इसको लिखने वाले हैं Tc by 5. ऑलराइट, फिर हम लिखने वाले हैं Tf माइनस का 32 डिवाइडेड बाय 9. ऑलराइट, Tc डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू Tf माइनस 32 बाय 9. ऑलराइट, अब हम क्या करें, बिकॉज C वाला तो हमें कैलकुलेट करना है, तो 5 को हम उधर भेज देते हैं, ठीक है. सो Tc इज इक्वल्स टू 98.6 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9 और 5 को हमने मल्टीप्लाई में भेज दिया, ठीक है. अब इसको कैलकुलेट करेंगे, राइट. इट वुड बी लाइक, इट वुड बी 66.6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9. ऑलराइट, अब इसको 3 से देख लेते हैं, राइट. 3 में क्या हो जाएगा, 3 में 22, मतलब 3 टाइम्स हो जाएगा ना, 22 by 2 एंड 3 3s are 9 अगैन, ठीक है. वी वुड बी डूइंग दैट, ठीक है. अगैन हम उसको जो है सॉल्व कर लेते हैं. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ऑन इन अप्रोक्स आई विल बी गेटिंग अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस मुझे मिलेगा, ठीक है. 30 डिग्री सेल्सियस मुझे मिलेगा, बिकॉज इफ आई डिवाइडेड दैट तो 3 7s हो जाएगा, राइट. सो 3 7s are 21, राइट, एंड इट वुड बी अगैन 3 7s, right, so it would be 77 something, or you can say 7.77 something, and when we divide it by 5 we will be get 37 something, right. So basically इतना टेम्परेचर हमको मिलेगा. अब हम अगेन एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस अगेन. तो इस बार हम क्या करें, 32, एक्चुअली दिस इज नॉट एक्चुअली में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. ऑलराइट, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. लेट्स डू दैट. वापस से हम लोग ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, Tc by 5 इक्वल्स टू Tf माइनस का 32 डिवाइडेड बाय 9. ऑलराइट, अगेन आई एम राइटिंग, ये Tc वाला जो हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इसे एज इट इज रहने देंगे, ठीक है. 5 को वहाँ लेकर चले जाएंगे और Tf में क्या लिखेंगे, 32 माइनस का 32 डिवाइडेड बाय 9. अब आप मुझे बोलो 32 माइनस 32 तो 0 होता है, राइट. तो आई वुड बी गेटिंग
TC बराबर 0 डिग्री सेल्सियस. So basically that's how we are going to convert each and every conversion between the Celsius, Kelvin and Fahrenheit, right? इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो आप फटाफट से नोट कर लो एंड देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड. फटाफट से नोट करो. देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड एंड वी विल बी सीइंग अलग अलग टाइप्स ऑफ टेम्परेचर जिससे हम मेजर करते हैं, यानी थर्मोमीटर्स, राइट. तो वी विल बी सीइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर. तो जल्दी जल्दी से कन्वर्ट करो, जल्दी जल्दी से सॉल्व करो. ठीक है, चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वन. ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर. ठीक है, 2 टाइप्स हम देख लेते हैं नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो पहला वाला होता है दैट इज द क्लिनिकल थर्मोमीटर, राइट. तो बेसिकली जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापने में काम आता है, राइट. किसी भी बॉडी का टेम्परेचर नापने में काम आता है बेसिकली. सो दिस इज द थर्मोमीटर. जब आप बीमार हो जाते हैं सो बेसिकली डॉक्टर के पास नॉर्मली ये वाला थर्मोमीटर रहता है. ठीक है, तो ये वाले थर्मोमीटर 2 स्केल्स में अवेलेबल रहता है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में अवेलेबल रहता है. ऑलराइट, नाउ यू कैन सी हियर, आप लोग डेफिनेटली देख सकते हो दैट कि ये जो स्केल होता है स्पेशली दिस इज यूज्ड बाय द डॉक्टर्स टू मेजर अ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, राइट. एंड इसमें आपको 2 स्केल्स देखने मिलेंगे. डिग्री सेल्सियस भी पॉसिबल हो सकता है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उसकी भी कुछ रेंज होगी. 0 से 100 नहीं होगा, ठीक है, और 32 से 212 नहीं होगा, राइट. तो देखते हैं क्या होता है. The markings are from 95 डिग्री फ़ारेनहाइट to 110 डिग्री फ़ारेनहाइट. देखो यहाँ पे ध्यान से, ऐसा क्यों होता है. देखो अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात कर रहे हैं तो अगर फ़ारेनहाइट स्केल में हम ये क्लिनिकल थर्मोमीटर बनाएंगे तो उसकी जो मार्किंग्स होंगी वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होगा, बस. उससे ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम नहीं होगा, और थोड़ा बहुत ही रेंज ऊपर नीचे हो सकता है. ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि भाई 108 तक ही हो, 94 से हल्का सा थोड़ा कम हो, ऐसा हो सकता है. ठीक है, बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी डज नॉट फॉल बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और राइज अबव 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, एज आइदर केस डेथ हो जाती है, राइट. तो बेसिकली आपका बॉडी, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कभी भी 95 से नीचे नहीं जाता, और इट कैन नॉट बी 94 डिग्री फ़ारेनहाइट, इट कैन नॉट बी 93, इट कैन नॉट बी 92, राइट. और 110 से ऊपर नहीं जाता, लाइक 111 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं जाता, राइट. तो ऐसा अगर होता है तो हमेशा जो ह्यूमन बॉडी है उसका डेथ हो जाता है. सो बेसिकली आपको ये बात ध्यान में रखना है दैट एक ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कैन बी रेंजिंग बिटवीन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट. और राइट, तो जब कभी भी आपको बुखार होता है तो आपको हमेशा बोलता है 104 डिग्री आपका बुखार है, तो व्हाट इज़ द यूनिट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको बुखार है, ऐसा आपको बोला जाता है, राइट. इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं सेल्सियस की, ठीक है, कोई क्लिनिकल टेम्परेचर जो थर्मोमीटर्स होते हैं उनमें सेल्सियस का मार्किंग होता है, तो इन दैट केस अगर हमें सेल्सियस का मार्किंग चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली से दैट उसमें 35 to 43 रेंज रहेगा. ठीक है, बिकॉज सेल्सियस के स्केल में क्या होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री तक जो है नॉर्मली उसका टेम्परेचर रहता है बेसिकली. और आप देख सकते हैं कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो रहता है किसी भी ह्यूमन बॉडी का, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो रहता है दैट इज व्हाट
37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, दैट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और फ़ारेनहाइट पे कितना रहता है? 98.6, ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ऑलराइट, सो बेसिकली यू नीड टू नो दैट ऑलवेज क्या होता है, हमेशा जो है टेम्परेचर जो है एक ह्यूमन बॉडी का रहता है। अब आपको क्या करना होता है, जब कभी भी हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है, तो क्या करना पड़ता है, यूज़ करने के पहले हमें इसे थोड़ा सा झटका देना होता है, ठीक है, और हमको जो है पहले से अच्छे से वॉश करके रखना होता है, ठीक है, हर एक यूज़ के बाद वॉश इट रेगुलरली, राइट। और क्या होता है, एक झटका देना होता है, बिकॉज उससे क्या होगा, सारा टेम्परेचर जो है, सारा मरकरी नीचे बॉल में इकट्ठा हो जाएगा। ऑलराइट, एंड व्हेनेवर दैट हैपन्स, उसके बाद आप मेजर करो, ठीक है, जब आप मेजर कर दो, जब आपका काम हो गया, आपको पता चल गया टेम्परेचर, एंड देन अगेन इसको आपको झटकना है हल्का सा, एंड यू हैव टू पुट इट अप। सो बेसिकली दैट फॉर कि भाई सारा का सारा जो मरकरी है वो उसमें चला जाए, ठीक है, पूरा का पूरा वापस उसके बल्ब में या फिर उसके कंटेनर में चला जाए, वी कैन से दैट, राइट। जब कभी हम मेजर करते हैं तो क्या होता है, ये जो मरकरी होती है ना, ये मरकरी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है एंड इट राइजेज, ठीक है, तो ये ऊपर चले जाती है। तो कितना ऊपर जाती है, वी ऑलवेज मार्क दैट थिंग एंड ऑलवेज से कि दिस इज द टेम्परेचर। ऑलराइट, दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू यूज द थर्मोमीटर्स। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर की। सो जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, जनरली वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, क्योंकि वो लैब्स में काम आते हैं। अब लैब में हम किस चीज़ का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, राइट, तो बेसिकली ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, सिर्फ ह्यूमन बॉडी के रेंज का तो नहीं होगा, राइट, बिकॉज हम डिफरेंट चीज़ों का नापेंगे टेम्परेचर। सो बेसिकली वहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के टेम्परेचर्स होते हैं। उसमें से एक टेम्परेचर ऐसा होता है जो आपको इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बताता है। जैसे आपने न्यूज़ सुनी होगी कि भाई इस एरिया में इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उस एरिया में उस देश का या फिर यू कैन से उस सिटी का इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो वो जो नापा जाता है, वो जो मेजर किया जाता है, वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर से मेजर किया जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। तो उसमें थर्मोमीटर का नाम ही है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो इसका जो रेंज होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स का रेंज कितना होता है, फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस, माइनस का, वो भी देखो माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट यू कैन से दिस इज द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। नेक्स्ट यू कैन से कि भाई हमको कुछ कभी भी किसी भी थर्मोमीटर के साथ डील करते हैं, सो वी नीड सम टाइप ऑफ, डेफिनेटली वी हैव टू टेक सम प्रिकॉशंस ओवर देयर, ठीक है, हमें कुछ प्रिकॉशंस रखने होते हैं। एंड उसमें से नंबर 1 क्या है, दे शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड। व्हेनेवर यू रीड अ थर्मोमीटर, टेक इट अपराइट इन द स्ट्रेट पोजीशन। ऑलराइट, उसको टिल्ट नहीं करना है, टिल्ट करने से आप गलत रीडिंग रीड कर सकते हो। तो बेसिकली यू हैव टू कीप द थर्मोमीटर अपराइट, स्ट्रेट, राइट। नेक्स्ट आप देख सकते हैं बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। तो किसी भी सब्सटेंस का, लेट्स से आपको वाटर का टेम्परेचर मेजर करना है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो छोटा सा बल्ब है जिसके अंदर मरकरी होता है, ठीक है, तो ये वाला जो बल्ब है जिसके अंदर मरकरी होता है, ये पूरा का पूरा चारों तरफ से पानी से सराउंडेड होना चाहिए इफ यू वांट टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर। अगर आपको मिल्क का टेम्परेचर मेजर करना है तो आपको उसको मिल्क के चारों तरफ से सराउंड करना है, राइट। दैट इज द रीजन, ताकि मिल्क का जितना भी हीट है और यू कैन से जितना टेम्परेचर है वो करेक्टली मेजर हो जाए, राइट। सो यू हैव टू ऑलवेज टेक प्रिकॉशंस ऑफ दिस। थर्ड वन इज बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर, ठीक है, कंटेनर का नहीं करना है सरफेस, सिर्फ उस जिस सब्सटेंस का आप मेजर करना चाहते हो उस सब्सटेंस से आपको सराउंडेड करना है चारों तरफ से। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट यू नीड टू कंसिडर बिफोर यूजिंग द थर्मोमीटर, ठीक है। तो ये प्रिकॉशंस आपको लेने होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों की, एंड दैट इज द यूनिट्स ऑफ हीट एनर्जी। सो बेसिकली आप ये बात जानते हो कि भाई जो एनर्जी का यूनिट होता है वो तो जूल होता है ना। तो इसका मतलब अगर जूल उसका यूनिट होता है तो डेफिनेट सी बात है कि हीट एनर्जी का भी जूल होगा। लेकिन यस, हीट एनर्जी का भी जूल होता है, बट आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है दैट जनरली कैलोरीज होता है, ठीक है। जनरली इट इज़ कैलोरीज, बिकॉज आप किसी भी फूड पैकेट में, लेट्स से आप चिप्स खाते हो, ठीक है, आप कुरकुरे खाते हो, आप इतना कुछ जो है मटेरियल खाते हो, पैक्ड मटेरियल खाते हो, तो जब आप कभी भी उसको पीछे देखना जहाँ पे डिस्क्रिप्शंस होते हैं वहाँ पर देखना, तो सारी एनर्जी वैल्यूज उसमें किलो कैलोरीज और कैलोरीज में लिखी होती है,
राइट। और जब कभी भी हम एक्सरसाइज करते हैं वी ऑलवेज से आज तो इतने कैलोरीज बर्न किए, राइट, इतने कैलोरीज गेन किए, राइट। तो व्हाट इज दैट? दैट्स द हीट एनर्जी, ऑलराइट। तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द यूनिट्स ऑफ हीट एनर्जी वी जनरली टॉक इन किलो कैलोरीज, लाइक दैट, राइट। तो अब देखो हीट एनर्जी इज मेजर्ड इन कैलोरीज में मेजर किया जाता है। द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ प्योर वाटर, आर यू एबल टू सी दैट 1 ग्राम ऑफ प्योर वाटर, मतलब अगर आप 1 ग्राम प्योर वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस, लेट्स से उसका 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और आप उसका 25 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करना चाहते हो सिर्फ 1 ग्राम प्योर वाटर का, सो इन डूइंग दैट जितना एनर्जी आपको देना पड़ा दैट इज द अमाउंट 1 कैलोरी, ठीक है, दैट अमाउंट इज नोन एज द 1 कैलोरी एंड ऑलराइट, ठीक है, दैट्स दी 1 कैलोरी। नाउ अब क्या होता है, ये तो बहुत छोटी यूनिट हो गया, बहुत ही छोटी यूनिट हो गया, हम जनरली बिगर यूनिट्स यूज करते हैं एंड दैट्स व्हाई वी यूज द किलो कैलोरीज, ऑलराइट, दैट्स व्हाई वी यूज द किलो कैलोरीज एंड वेयर इज दैट, देयर इज 1 किलो कैलोरी। सो व्हेनेवर हम क्या करते हैं 1 ग्राम की जगह 1 kg ऑफ प्योर वाटर का अगर 1 डिग्री सेल्सियस हम इंक्रीज करते हैं तब कितना हीट एनर्जी रिक्वायर होता है उसे हम बोलते हैं किलो कैलोरी, ऑलराइट। सो दैट इज व्हाट द किलो कैलोरी, यू शुड नो द अमाउंट्स एंड यू ऑल नो भाई 1 किलो कैलोरी इज इक्वल्स टू 1000 कैलोरी, ये तो बच्चा बता देगा, है ना, बिकॉज 1 किलो के इज फॉर 1000, राइट। किलोमीटर में भी 1000 मीटर होते हैं, केजी में भी 1000 ग्राम्स होते हैं, सो बेसिकली के इज फॉर किलो, 1000, राइट। तो ये चीज़ आपको पहले से पता है। अब देखो किलो कैलोरी को बिग कैलोरी या फिर डॉक्टर्स कैलोरी भी कहते हैं, ऐसा नॉर्मली ऐसे नाम है, वैसे जनरली आपको मिलेगा नहीं, फिजिक्स में तो नहीं मिलेगा, नॉर्मल लैंग्वेज में ज़रूर मिल सकता है आपको, तो इस तरीके के नाम होते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो अगर हमें जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, देखेंगे, ये फॉर्मूला देखते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ये दोनों ही चीज़ें आपको रिमेंबर करनी ज़रूरी है, ठीक है। देखो 1 कैलोरी जो है 1 कैलोरी जो है उसमें 4.186 जूल्स होते हैं, यानी ऑन एन अप्रॉक्स यू आर गेटिंग 4.2 जूल्स अप्रॉक्सीमेटली, ओके। एंड जो 1 किलो कैलोरी होता है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी यू वुड बी गेटिंग 4200 जूल ऑन एन अप्रॉक्स। सो बेसिकली यू नीड टू रिमेंबर दीज आर द स्टार मार्क्ड, ऑलराइट, दीज आर द स्टार मार्क्ड, ठीक है। आपको क्या यूज रखना है, कैलोरी रिमेंबर करना है, कैलोरी इज अ स्मॉल यूनिट, ऑलवेज रिमेंबर किलो कैलोरी, राइट। एंड कैलोरी का क्या होगा कि भाई प्योर वाटर का अगर हम 1 ग्राम प्योर वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो जितना एनर्जी चाहिए दैट इज कैलोरी। इसी तरीके से 1 kg ग्राम का वाटर का प्योर वाटर का अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर दे देन द हीट रिक्वायर्ड इज किलो कैलोरी। और अगर हम उनको कन्वर्ट करना चाहते हैं जूल्स में देन वी शुड ऑलवेज मल्टीप्लाई द थिंग्स विद 4.2 जूल इन केस ऑफ कैलोरी एंड 4200 joules in case of kilocalories, right? Basically this is all the units, right? these are the units we always use about the heat energy, so write them out, right? उसके बाद देखते हैं हम। Alright, so that's what we have studies in this lecture, right? Basically हम लोगों ने इतना सब कुछ पढ़ा है इस लेक्चर में। तो अभी आप देखो आपको क्या करना है, आपको ये सारी यूनिट्स रिमेंबर करनी है, आपको जो कन्वर्जन के फॉर्मूले आज सिखाए गए हैं उन सभी को रिमेंबर करना है, बिकॉज ये फॉर्मूला अगर थोड़ा सा भी इधर से उधर हो गया ना, आप मैंने -32 का +32 लगा दिया बाय मिस्टेक और 273 का आपने 373 कर दिया, तो किसी भी वजह से ये फॉर्मूला अगर गड़बड़ हो गया तो आपकी सारी कैलकुलेशंस भी गड़बड़ होंगी। तो मेन आपको काम क्या करना है, आपको ये रिमेंबर करना है दिस फॉर्मूला एग्जैक्ट, राइट। तो बेसिकली अगर आप कर लेते हैं तो एक तरीके से आप सारे कन्वर्जन के फॉर्मूले स्पेशली टेम्परेचर की डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये सभी टेम्परेचर जो है आप इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे। तो दैट वुड बी वेरी गुड, राइट। बहुत अच्छे से आप टेम्परेचर के इस कन्वर्जन को कर पाएंगे और बहुत ही अच्छा भी है ये भी, राइट। तो अगर आपको मास्टर करना है दैट आपको बहुत ही कम टाइम लगे कन्वर्जन्स में, सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला विच आई टोल्ड यू अर्लियर, राइट। आपको डिफरेंट यूनिट्स याद रखनी है, कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, किलो जूल,
ऑलराइट, बस ये 4 जो हैं वो हीट एनर्जी में रिलेटेड हैं। 3 टाइप्स ऑफ स्केल्स हम यूज़ करते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। केल्विन में 0 केल्विन के नीचे कोई टेम्परेचर नहीं है, सो 0 केल्विन इज़ द मिनिमम लेवल, उसके नीचे कोई टेम्परेचर नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ वैल्यूज़ जो हैं डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, उनकी भी हैं और उसके नीचे कोई वैल्यूज़ नहीं है, राइट। जो बेसिकली आपको वो रिमेंबर करनी है। डू रिमेंबर द एग्जैक्ट, लाइक आपको क्या करना है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, इन तीनों स्केल्स के अंदर आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की वैल्यूज रिमेंबर करनी है। लाइक 0 डिग्री सेल्सियस तो क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। इसी तरीके से आप देख सकते हो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रीजिंग पॉइंट है लेकिन फ़ारेनहाइट वाले स्केल में है, राइट। इसी तरीके से आप केल्विन में भी रिमेंबर करो, एंड सिमिलर गोज फॉर द बॉइलिंग पॉइंट। तो ये 2 ऐसे पॉइंट हैं, द फ्रीजिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट, जिसको आपको रिमेंबर करना है, राइट। एंड बेसिकली आप कर सकते हो बहुत ईजिली, राइट। एंड डू रिमेंबर इट, आपको क्या करना है, मेनली फ्रीजिंग पॉइंट के तीनों स्केल्स के वैल्यूज क्या होते हैं एंड बॉइलिंग पॉइंट के तीनों स्केल्स के वैल्यूज क्या होते हैं, राइट। ये चीज़ आपको रिमेंबर करनी है, एंड दैट वुड बी ऑल फ्रॉम द हीट चैप्टर। एंड डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी चीज़ें पढ़ेंगे, लाइक बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़ने के लिए। सो डू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। मेक श्योर यू रिमेंबर द करेक्ट फॉर्मूला एंड डू रिमेंबर द यूनिट्स। So thank you so much for watching the videos. Please like it, share it, subscribe it, and do click on the bell icon, alright, so that you will remain notified for the upcoming classes. So basically that's all for now. Thank you so much.